Hello students, today I am going to discuss one of the important topics of the chapter Nature and Purpose of Business from Business Studies class 11. Okay, so in this chapter today we are going to start business risk. Here business risk refers to the possibility of inadequate profits and even losses due to uncertainties of unexpected events. बिजनेस रिस्क मैं बोल रहा हूँ बेसिकली दैट रिस्क refers to the possibility or inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. For example, demand for a particular product may be declined due to changing taste preferences of consumers or increasing competition. There are basically these are the examples of business risk. Demand बढ़ गया, उसका प्रोडक्ट डिमांड कम हो गया तो इसका प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बिजनेस का रिस्क होगा उसमें, बिकॉज टेस्ट प्रेफरेंस जो है टेस्ट जो है कंज्यूमर का वेरी करता है. जैसे कि पहले हम लोग के इंडिया में था कीपैड मोबाइल, अभी कीपैड मोबाइल नहीं चलता है इंडिया में, स्मार्टफोन चलता है. बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स कीपैड मोबाइल कंपनी का बिजनेस रिस्क हो गया है, ये हम लोग बोल सकते हैं. Now, the nature of business risk. Business risk arises due to uncertainties. Risk is essential part of every business. Degree of risk depends mainly upon the nature and size of the business. Profit is reward for risk taking. Now, मैं एक एक करके उस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस करूँगा. फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क arises due to uncertainties. इसका मतलब ये है lack of knowledge of what is going to happen in future create uncertainties in business. It may be due to natural calamities, it may be due to change in demand and prices and strikes. मैं बोल रहा हूँ क्या बिजनेस इज एज ए ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज रहता ही है बिजनेस में, कल क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं बिजनेस में क्या होगा. जैसे कि कोविड सिचुएशन में क्या हुआ है, इंडिया का पूरा बिजनेस हालत बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चला आया, मगर दिसंबर में जनवरी में भी इस हालत ऐसा नहीं था बिजनेस का इंडिया में, मगर मार्च आते आते वो हालत बहुत ही बदतर होना शुरू हुआ. ठीक है, सो ये जो बिजनेस रिस्क है ये ड्यू टू अनसर्टेनिटीज का एक पार्ट है. नेक्स्ट पॉइंट जो है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट of every business. Yes, no business can avoid risk, although the amount of risk may be vary from business to business. Risk can be minimized but cannot be eliminated. So business कोई भी बिजनेस जो है उसमें रिस्क रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहता है. रिस्क मिनिमाइज हो सकता है यानी कम हो सकते हैं, मगर एलिमिनेट नहीं हो सकता, यानी बात हम लोग नहीं दे सकते उसको. रिस्क रहेगा ही बिजनेस में. नेक्स्ट जो पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. यस, बिकॉज द लेवल ऑफ रिस्क इज लोअर फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस वाइल इट इज हायर फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस. If it is a large scale then इसका रिस्क ज़्यादा होगा, if it is a small scale then इसका रिस्क कम होगा. तो degree of risk depend upon the mainly the nature and size of the business. Okay, next जो point है वो है profit is reward for risk taking. Yes, a business get profit as a return of undertaking the risk. Greater the risk involved in a business, higher it is the chance of profit. सो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, हमेशा याद रखो वो चीज. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क देके रखो. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल कॉजेस, सेकेंड वन इज ह्यूमन कॉजेस, थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉजेस, फोर्थ वन इज फिजिकल कॉजेस, 5 नंबर इज अदर कॉजेस. ये लास्ट पॉइंट है 5 नंबर. नेचुरल कॉजेस क्या है, सिंपली ह्यूमन बींग्स
have a little control over natural calamities like flood, earthquake, famine, etc. They result in heavy losses of life, property, and income in the business. So this is the example of natural causes. Next point is human causes. Human causes include such unexpected events like dishonesty, carelessness, or negligence of employees, strikes, riots, management efficiency, etc. सो ये ह्यूमन ही बनाता है ह्यूमन कॉजेस. ह्यूमन कॉजेस इंक्लूड, मैंने क्या बोला है कि सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, स्ट्राइक्स, ये हम लोग ही बनाते हैं, राइट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक कॉजेस. They are related to change of loss due to change in market condition, fluctuation in demand and prices, competition, change in technology. They are the economic causes. देखो, टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ही चलेंगे. आज के दिन में जो मोबाइल कंपनी 3G मोबाइल का सेट सेल कर रहा है उसका सेलिंग इतना अच्छा नहीं होगा जितना 4G मोबाइल का सेट सेलिंग अच्छा होगा. सो दिस इज द इकोनॉमिक कॉजेस. नेक्स्ट वन इज फिजिकल कॉजेस. मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेल्योर may also lead to losses. For example, bursting of boiler or machine may be causes death or destruction. कोई मशीन के लिए, कोई पोल्ट्री फार्म के लिए वो फिजिकल कॉजेस भी हो सकता है. जानबूझ के इसका अगर हम लोग देंगे, कोई भी फिजिकली उस बिजनेस को रिस्क उसका तैयार करेंगे तो ये फिजिकल कॉजेस के अंदर आते हैं. Next point is other causes. Like this include unforeseen events like political disturbance, fluctuation in exchange rates. Political disturbance जो है ये वाला, political disturbance यानी देश के अंदर अगर अच्छा हालत नहीं है तो politically अच्छा हालत नहीं है तो obviously कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा. इसके लिए बिजनेस का रिस्क हमेशा रहेगा. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही है इंडिया जो देश में, अगर कोई भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस दिखाई देता है तो वो कंपनी का सेलिंग में, उसका बिजनेस में थोड़ा सा इफेक्ट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा. सो ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का एक एग्जांपल. वो जो फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट का मैंने बोला है अभी, उसको मैं समझा के देता हूँ. सोचो कि एक आदमी है जो इंडिया में रहता है, वो आदमी यूएस से यानी अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट खरीदा थ्रू Amazon.com. देखो, Amazon.in है और Amazon.com है. Amazon.in यानी इंडिया का Amazon है और Amazon.com यानी पूरे वर्ल्ड का Amazon है, Amazon का शॉपिंग जो साइट है. सो जो आदमी है उसने Amazon.com से खरीदा, यानी इंडियन रुपी Amazon.in में चलता है मगर Amazon.com में US डॉलर चलता है. जो भी खरीदोगे US डॉलर से ही खरीदना पड़ेगा. सो वो आदमी क्या किया, सोचो कि आज के दिन में रह के एक US डॉलर का जो वैल्यू है वो है 74.783 INR इन इंडियन रुपी. ओके, INR का मतलब इंडियन रुपी, और एक US डॉलर इज इक्वल टू 70.783. तो उसने एक प्रोडक्ट खरीदा जिसका प्राइस है 4 US डॉलर. उसका प्राइस उसको देना पड़ेगा 299.132 US इंडियन रुपी. उसका अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 299 यानी 299.132 पैसा देना पड़ेगा. अगर किसी कारणवश इंडिया का हालत अगर अच्छा हो जाए तो इंडिया का हालत अच्छा होने के बाद इंडिया का सोच लो कि अभी 60 चल रहा है, 1 US डॉलर इज इक्वल टू 60, तो उस आदमी को कितना देना पड़ेगा, 240 US डॉलर, अरे सॉरी इंडियन रुपी. तो उस आदमी का अगर इंडिया का हालत अच्छा हुआ तो कितना कम देना पड़ा. पहले तो देना पड़ रहा था, आज के दिन में डेट में देना पड़ रहा था 299.132,
मगर हालत अच्छा होने के बाद उसको देना पड़ रहा है 240 उस प्रोडक्ट का ही प्राइस। तो ये जो प्राइस है वो सेव हुआ, उसके मानी बैग में रहा, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन, बिकॉज ऑफ दैट गुड कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो ये जो मैंने पॉइंट बोला है ना, द लास्ट पॉइंट अदर कॉजेस, वो फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ये क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में भी है तुम लोगों का, ये उस समय भी अच्छी तरह से तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को अभी समझ में आ ही गया कि कैसे होता है वो प्राइस चेंज कैसे होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। इसमें मैंने देखो टोटल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके पॉइंट को लेके बात किया। इसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर, यानी कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या फैक्टर हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका पहला पॉइंट है सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस। यस, वी हैव टू सिलेक्ट द लाइन ऑफ द बिजनेस बाय एंटरप्रेन्योर। इज द लाइन एंड द टाइप्स ऑफ द बिजनेस इज व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, ये लाइन हम लोग को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्केल और साइज ऑफ ए बिजनेस। यस, एनी एंटरप्रेन्योर और एनी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेस शुरू करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन भी हम लोग एंटरप्रेन्योर को भी बोल सकते हैं, मगर इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। स्केल और साइज ऑफ ए बिजनेस, इसका मतलब है आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ बिजनेस द बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड whether he wants to set up a large scale or small scale business। यानी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस का जो डिफरेंस है वो स्केल ऑफ ए बिजनेस के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज टू बी सेट अप sole proprietorship, partnership or joint stock company। Okay, next point is location of business enterprises। The entrepreneur has to decide the place where the enterprise will be located। Before taking this decision, he must find out the availability of raw materials, power, labor, banking, transportation, etc। यानी ये जो लोकेशन ऑफ बिजनेस है फुली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंटरप्रेन्योर की चॉइस के ऊपर। किस लिए मैंने चॉइस बोला है, बिकॉज देखो अगर जिस जगह में वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर दे रहा है उसका लोकेशन अगर अच्छा नहीं है, उसके सामने रॉ मटेरियल का जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर इसके बाद पावर कंजम्पशन, फिर लेबर, बैंकिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, ये अच्छा नहीं है उस जगह के अंदर। तो लोकेशन अच्छा नहीं है अगर है तो ये एंटरप्रेन्योर उस जगह में अगर बिजनेस देगा तो उसमें लॉस में रन करेगा ही करेगा। तो ऑब्वियसली ये लॉस में अगर रन करेगा तो बिजनेस, उस बिजनेस के लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ओके, सो कोई भी बेसिक फैक्टर को हम लोग का जब ध्यान में रखेंगे तभी इस पॉइंट को हम लोग ज़्यादा महत्व देंगे। नेक्स्ट वन इज फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। यस, finance is the lifeblood of any kinds of business। The businessman must analyze the amount of capital he might require to buy fixed asset and for working capital, that is day to day expenses। फिक्स्ड एसेट क्या है, जो एसेट को हम लोग बिजनेस में हमेशा लगेगा, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, परमानेंट मशीनरी, एवरीथिंग, दे आर द फिक्स्ड एसेट। वर्किंग कैपिटल क्या है, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए जो कैपिटल लगता है वो उसको बोलेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग अगर नहीं होगा फिनेंस का तो ये बिजनेस कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, बिजनेस को लॉस में रन करना ही पड़ेगा। तो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल
Next point is physical facilities. Basically, it includes machinery, equipment, building, etc. This decision depends upon the size, scale, and types of business activities he wants to carry on. Here, he means businessman. Next one is plant layout, showing the physical arrangement of the machine and equipment needed to manufacture a product. This is called a plant's layout. Next one is competent and committed workforce. The entrepreneur must find out the requirement of skilled and unskilled worker and managerial staff to perform various activities. The entrepreneur must find out the requirement of skilled and unskilled worker. मैनेजमेंट को ये देखना ही पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को ये देखना पड़ेगा कौन सा एम्प्लॉय स्किल्ड है, कौन सा अनस्किल्ड है. जो अनस्किल्ड है उसको निकालो पहले. स्किल्ड वर्कर को रखना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट ग्रोइंग ऑफ दैट बिजनेस. ओके, सो कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट. ओमिटेड वर्कफोर्स का मतलब वर्कफोर्स यानी जो बिजनेस में जो लेबर का वर्कफोर्स रहता है उसका बारे में बोल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग. ये टैक्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी बिजनेस में. द एंटरप्रेन्योर मस्ट ट्राई टू एनालाइज द टाइप्स ऑफ टैक्सेस बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री which affect the functioning of business. ये एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कौन सा टैक्स किस में लगेगा, बिकॉज टैक्स प्रॉफिट को कम करता है. बिकॉज जब हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा उससे ही टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो जाएगा. अगर टैक्स ज़्यादा देंगे तो प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा. टैक्स प्लानिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल. नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप of the enterprises. After analyzing the above mentioned 9 points, carefully the entrepreneur can start business, which would mean mobilizing various resources and completing legal formalities. सब कुछ देखने के बाद हम लोग अभी शुरू करेंगे अपना एंटरप्राइज का शुरू करने का काम. सो ये जो स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर को हम लोग को ध्यान में रखना है वो है सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ द बिजनेस. कौन सा लाइन लेंगे. इसके बाद स्केल और साइज ऑफ द बिजनेस का हालत कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा. इसके बाद चॉइस ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बिजनेस को हम लोग चॉइस करेंगे. लोकेशन क्या होगा. लोकेशन अगर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बिजनेस का लॉस में रन करना पड़ेगा फ्यूचर में. ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है. इसके बाद फिनेंशियल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ कितना है, प्लांट लेआउट कितना है, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स अच्छा है या नहीं है, टैक्स प्लानिंग कितना देना पड़ेगा, सेटिंग अप द एंटरप्राइजेस ये लास्ट वन है. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेस फैक्टर्स. नेक्स्ट दिन हम लोग इसको रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को. इसके बाद हम लोग एक टेस्ट देंगे. ओके, बाय.